محمد وعلى صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم کو سب کو پھر سے جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، سمجھے، ان کی سیرت کو سمجھے اور سنتوں پہ چلنے والے بنے۔ الحمدللہ آج کا دن بھی اتنا اچھا ہے، آج عرفہ کا دن ہے، آج سب کی دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، تو ہم سب بھی کیا کریں گے، دعائیں خوب کریں گے، آج خوب دعائیں مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو صحیح دین پہ قائم رکھے اور ہم کو ایمان والی زندگی عطا کرے اور ہم کو ایمان والی موت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو سب کی ہماری حفاظت فرمائے، دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے اور ہم کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ لاسٹ ہم لوگ نے دیکھے کہ کس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، سب کو عام دعوت دینے لگ گئے۔ سب سے پہلے جب وہی نازل ہوئی تھی تو کیا کیے تھے، سب اپنے قریبوں کو دعوت دیے تھے۔ اس کے بعد جب حکم آ گیا 3 سال بعد کہ ابھی آپ کیا کرو، سب کو دعوت دو، اپنے قرابت دار کو دعوت دو، اپنے رشتہ داروں کو اور پورے مکہ والوں کو دعوت دو، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے عام دعوت شروع کر دیے تو سب سے زیادہ ان کے سب سے بڑے دشمن کون بن گئے؟ ابو لہب بن گئے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کو بہت ستایا کرتے تھے، وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتے تھے۔ تو اور مکے کے جو جتنے لوگ جو تھے، جو اتنے اچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو الامین الصدیق بلایا کرتے تھے، اب کیا ہو گئے، وہ سارے لوگ ان کے دشمن ہونے لگ گئے۔ اور مین ریزن کیا تھا، کیونکہ قریش لوگ کو کیا لگ رہا تھا، اکانومیکلی اور پولیٹیکلی کیا ہو جائے گے، ان لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور سارے بتوں کو مت مانو، تو کیا ہوئے گا، ہم کیا ہو جائیں گے، اکانومیکلی اور پولیٹیکلی اور سوشلی کیا ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ جس یہ اتنے سارے بتوں کے وجہ سے کیا ہے، ہماری اتنی دھاک ہے، ہمارے کو اتنے چڑھاوے آتے ہیں اور ہم لوگ سب اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم سے چھین جائیں گی۔ تو اس لیے یہ سارے لوگ کیا کر رہے تھے، نہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، اور کچھ لوگ جو صحیح تھے، حق پہ تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایمان قبول کر رہے تھے۔ اب یہ اس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب یہ 4 سال کے جو آخری کا جو دور تھا، تو جو نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان پہ کیا ہونے، یہ ان لوگ کیا کرنے لگے، قریش لوگ، ان لوگ بہت ہی ان لوگ پہ ظلم کرنے لگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کر سکتے تھے، ان لوگ زیادہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے چاچا ابو طالب کا یہ تھا، ہاتھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان لوگ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے طریقے سے بہت ستایا کرتے تھے، ان کے خلاف الگ الگ باتیں پھیلا رہے تھے، ان کو بھی جھوٹا بولنے لگے تھے، مجنون بولنے لگے تھے، نعوذ باللہ، ایسی اس طریقے سے ان لوگ بہت طرح یہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے۔ کیونکہ حج کا مہینہ آ گیا تھا، تب ان لوگ نے سب مل کے جمع ہو کے ان لوگ نے باتیں بنائی کہ کس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، کہ کس طرح سے، کیونکہ اب حج کے ٹائم کیا ہوگا، سارے لوگ آئیں گے، تو سارے لوگ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور قرآن سنیں گے، اور کبھی ان لوگ سب ایمان لا لیے تو کر کے ان لوگ کس طرح سے بھی کیا کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے ان لوگ نے مل کے پلاننگ کر کے کیا کرنے لگے، کوئی لوگ کیا کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے،
किसी लोग ने क्या किए, नबी वसल्लम को बोल रहे थे कि नहीं वो तो सच्चे हैं, वो तो सही है, लेकिन वो जो दावत दे रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरह से बोलने लगे। और तीसरा उन लोग ने क्या तरीका निकाले कि उन लोग क्या करने लगे, जब वहाँ पे भी नबी वसल्लम जाते थे कुछ भी बयान करने और बात करने, तो वहाँ पे जाके इन लोग अपने गाने सुनाना, शोर करना, कहानियाँ सुनाना, किस्से सुनाना, इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने लगे। फिर हमने देखे कि जितने भी जो नए मुसलमान थे, उन लोग पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करने लगे थे। जो-जो गुलाम थे, उन पे क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होने लगा। तो उसमें जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु है, उनको उनके चाचा ही ये किया करते थे। उनको चटाई में डाल के उनको धुआँ दिया करते थे। फिर मुसअब इब्न उमैर जो थे, उन्होंने ईमान लाए तो उनको क्या करना पड़ा, उनको अपना घर-बार सब छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि वो ईमान ला लिए तो इसलिए उनको वो सारी चीज़ों से निकाल दिया गया। फिर हज़रत बिलाल जो थे, उन पर भी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-सितम हुआ करता था, तो आखिर में उनको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने खरीदे और उनको आज़ाद कर दिए। फिर जो अम्मार बिन यासिर है, उनके अम्मी-अब्बा और अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सारे लोगों पे भी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया जाता था। और उसमें ये उनके अब्बा और अम्मी पे इतना ज़ुल्म किया गया कि आखिर में वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी अम्मी थी सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सबसे पहले इस्लाम की सबसे पहली शहीद जो थी, वो सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु थी और उसके बाद उनके अब्बा यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु का भी इंतकाल हो गया। तो कुरैश लोग का सताना बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लग गया था। और एक बार कुरैश लोग है ना, उन्होंने क्या किए थे, अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ लिए थे और उनको इतना मारे और उनको है ना कुरफ़ी कलमात जो थे, जो उन लोग पहले जाहिली के टाइम पे बोलते थे, जिसमें उन लोग मन और लज़ा और ऊज़ा की तारीफ़ें करते थे, वो कलमात उनको ज़बरदस्ती बोलने लगाए। तो अब ये तो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मार के डर से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो उन लोग बोलना चाहते थे, वो बोल दिए। वो बोलने के बाद फिर उन्होंने क्या किए, नबी वसल्लम के पास गए और बोले कि देखो, इन लोग ने मुझे मारे, तो मेरे से इन लोग ने बोलने लगा है, तो मैं ना इन लोग की ज़बरदस्ती में आके मैंने ये कुरफ़ी कलमात बोल दिए। तो नबी वसल्लम ने बोले कि तुम्हारे दिल का हाल बताओ कैसा है? ये कलमात बोलने के बाद तुम्हारे दिल का हाल कैसा है? तो अमर रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाए कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की जितनी मोहब्बत जैसे पहले थी, अभी भी कैसी है वैसी ही है। तो उस पर नबी वसल्लम ने क्या बोले कि अगर तुमको वापिस से इन लोग ने पकड़े और अगर वापिस से तुमको ज़बरदस्ती करेंगे, तो तुम क्या करना, वापिस से ये कुफ़्र कलमात बोल देना। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये दिल से नहीं बोला जा रहा है, ये सिर्फ़ मार के बचने के वजह से बोला जा रहा है। तो इससे भी हमको ये एक सबक क्या मिलता है कि आज देखो, आज हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि यूपी में इस तरफ जगह पे कितने लड़के लोग ने मिल गए और एक लड़के को बोलते जय श्री राम बोलो, ऐसे सब जबरदस्ती से बोलने लगाते हैं और मारते हैं। तो अगर कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो हम लोग ऐसी बात उन जैसा उन लोग की मार के बचने की वजह से ये ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन फिर हमको क्या करना है, वापस घर पे आके हमारा कलमा दुरुस्त करना है और हमारा ईमान को और मजबूत करना है। तो यहाँ से हमको ये मिलता है कि इस तरह से हम बोल सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन दिल में जो हमारा यकीन है, दिल में जो हमारा ईमान है, वो ज़रा-सा भी ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो रहा था, कुरैश वो लोग बहुत ज़रा सताते जा रहे थे लोगों को। तो उसमें अब क्या हुआ, अब जब इन लोग का इतना सख्ती बढ़ गई और फिर उन लोग नबी वसल्लम को भी बहुत सताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब नबी वसल्लम के पीछे किसका हाथ था, अबू तालिब का था। तो उन्होंने क्या किए, सबसे पहले अबू तालिब के पास गए और उनको बोलने लगे कि अब तुम क्या करो, अपने है ना भतीजे को समझाओ, यह तुम्हारा भतीजा क्या कर रहा है, अब हद से बढ़ते जा रहा है। वो हमारे माबूदों की बुराई करता है और हमारी अक्लों को बोलता है कि तुम लोग बेअक्ल हो, ये सब हमारे बारे में बुरी बात है। तो तो तुम क्या करो, इसको मना करो। तो तब अबू तालिब ने उन लोग को आराम से बात करके वापस भेज दी। लेकिन जब देखे उन लोग के इन लोग पहली बार भी जाने के बाद अबू तालिब क्या कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे नबी वसल्लम से और नबी वसल्लम का रवैया कुछ भी नहीं बदला है। तो वापिस से इन लोग क्या करें, अबू तालिब के पास गए और फिर वापिस से उनको बहुत प्रेशर करने लगे। उनको बहुत ये करने लगे कि तुम क्या करो,
तुम्हारे भतीजे को रोक दो, वरना ये अच्छा नहीं होगा करके उन लोग बहुत ज़्यादा सख्ती से बात करने लगे अबू तालिब से। तो फिर भी अबू तालिब ने कैसे भी उन लोगों को समझा के भेज दिए और फिर उन्होंने किसको क्या करे, नबी वसल्लम को बुला भेजे और नबी वसल्लम को बुला भेजे और नबी वसल्लम को बोले समझाए कि देख, उनको समझाने की कोशिश करे नबी वसल्लम को कि मेरी अभी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई है, तो मुझ पे ना इतना वज़न मत डालो। करके उन्होंने ऐसा बोले कि मैं है ना जितना बर्दाश्त कर सकता हूँ उतना ही वजन डालो, उससे ज्यादा मेरे को और आजमाइश में मत डालो। तो ये सुन के नबी वसल्लम को क्या लगा कि अभी इनके चाचा क्या करेंगे, अब इनका साथ नहीं देंगे। तो नबी वसल्लम ने अपने चाचा को बोले कि देखो, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज और उल्टे हाथ में चांद भी रख देंगे ना, तभी भी मैं ये जो लिया हूँ दीन का काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिए, वो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह मुझे क्या करे, इन लोग पे गालिब कर दे, या तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं ये काम हरगिज भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोल के नबी वसल्लम जाने लगे पलट के। तो उनके चाचा ने उनको वापिस से बुलाए और बोले कि भतीजे वापिस आओ। और जब वो वापिस आए तो उनको बोले कि एक काम करो, जाओ, तुमको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिए है और जैसा तुम्हारा दिल कर रहा है तुम वैसे करो, और अल्लाह की कसम मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा कर दी। तो यहाँ पे अबू तालिब ने क्या दिलासा दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम कुछ भी करो, तुमको जो करना है करो, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको हुक्म दे रहे हैं वो करो, मैं तुमको कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा करके उन्होंने ये नबी वसल्लम को दिलासा दे दिया। अब जब कुरैश लोग ने देखे कि अबू तालिब जो है अपने भतीजे की मोहब्बत में बहुत ही ज़्यादा ये हो गए हैं और हमारी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, इनको इनके भतीजे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो ये अपने भतीजे को ज़रा भी प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, तो ये कुरैश लोग वापिस से नबी वसल्लम के पास, ये अबू तालिब के पास गए। और कुरैश लोग जाके अबू तालिब को बोले कि हम लोग ने हमारे पास में से, हमारे कबीले में से जो सबसे खूबसूरत लड़का है, जिसका नाम था उमारा बिन अल वलीद बिन अल मुगैरा, तो वो लड़के को लेकर आए और बोले कि अबू तालिब ये देखो, ये हम लोग है ना क्या लाए हैं, हमारे पास से जो सबसे हमारे घर कबीले का काबिल और खूबसूरत लड़का है उसको हम लेकर आए हैं। तो तुम क्या करो, इस बच्चे को, हमारे जो बच्चे को हम लोग लेकर आए हैं, इसको है ना तुम तुम्हारे पास रख लो, और है ना तुम जैसा चाहे तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जवान है तो तुम इसकी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसके दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकता है और तुम्हारे लिए पैसा भी बना सकता है, तुम्हारी खिदमत भी करेगा, तुम्हारे काम भी आएगा। और इसके बदले में जो तुम्हारा भतीजा है, जिसके वजह से तुमको इतनी तकलीफें आ रही है, जिसके वजह से तुमको इतनी ज़िल्लत सहनी पड़ रही है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, क्या करो तुम है ना उसको हमारे हवाले कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो क्या करते जा रहा है, तुम्हारा भतीजा बहुत हमारे खिलाफ और हमारे माबूदों के खिलाफ बात कर रहा है, तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। तुम क्या करो, ये बच्चा ले लो और उसके बदले में तुम्हारे भतीजे को हमारे हवाले कर दो। तो ये सारी बातें सुन के अबू तालिब ने बोले कि ये तुम कैसा सौदा कर रहे हो? तुम तुम्हारे बच्चे को मेरे पास दे रहे हो ताकि मैं उसको खिलाऊँ, पिलाऊँ, बड़ा करूँ, अच्छे से रखूँ, और तुम मेरे बच्चे को लेके जाके कत्ल कर दोगे, ऐसा मुझे बोल रहे हो, तो तुम ये कैसा सौदा कर रहे हो? तो फिर अबू तालिब जो थे उन्होंने मना कर दिए कि तुम लोग कैसे बातें कर रहे हो? तुम बोलते तुम्हारे बच्चे को मैं रखूँ, खिलाऊँ-पिलाऊँ, अच्छे से पालूँ-पोसूँ, अच्छे से रखूँ, और तुम मेरे बच्चे को कत्ल करने की बात कर रहे हो, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तो अबू तालिब ने उन लोग की जो ऑफ़र उन लोग लेकर आए थे, वो वापिस से ठुकरा दी और फिर वापिस से कुरैश पलट के चले गए। अब इन लोग ने क्या किए, अब ये देखे कि अबू तालिब भी टस-से-मस नहीं हो रहे हैं और नबी वसल्लम जो है वो भी अपनी दावत का काम करते जा रहे हैं। तो इन लोग ने क्या किए, नबी वसल्लम के खिलाफ है ना अब बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने लग गए। और जो अबू लहब जो था, वो सबसे इस काम में सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के कौन थे, उनके चाचा जो थे अबू लहब, वो सबसे ज़्यादा थे। तो वो उन्होंने इतना नबी वसल्लम को इतना सताया करते थे, और जब भी कहीं पे भी अगर जब हज के महीने में भी नबी वसल्लम कहीं पे भी दीन की दावत देने, कहीं पे भी जाके दूसरे लोगों से कुछ भी बात करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे क्या होते थे, ये पहुँच जाएँगे बराबर, उनके साथ-साथ, उनके पहले पहुँच जाएँगे उनके साथ-साथ, और जैसे नबी वसल्लम दावत का काम करने के लिए कुछ बोलने जाएँगे, तो
बोलते थे कि इसकी मत सुनो, ये तो मजनून हो गया है, नाउज़-बिल्ला, ऐसी सब बातें करते थे। इसकी ब ऐसी सब बातें नबी वसल्लम के खिलाफ किया करते थे। अब कहीं पे भी अगर तुम कुछ बोलने जा रहे हो और तुम्हारे घर वाले ही आके तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे, तो तुम्हारी बात का कितना वज़न रह जाएगा। तो इसलिए क्या किया करते थे, नबी वसल्लम चुप बैठ जाया करते थे। प्लस फिर इन्होंने क्या किए, अबू लहब ने अपने 2 बेटों का उनका निकाह है ना नबी वसल्लम की 2 बेटियों से हुआ था। रुकैया और उम्मे कुलथुम से अबू लहब के 2 बेटियों का निकाह हुआ था। तो उन्होंने क्या किए, अपने बेटों को है ना तलाक देने के लिए लगाया। अब इनकी 2 बेटी नबी वसल्लम की क्या हो गई है, उसको उनको अबू लहब के बेटों ने तलाक दे दी। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नबी सल्लम मतलब अभी उनको नबुवत मिली है, नबुवत मिले के 3-4 साल हुए हैं, लेकिन उनको क्या नबुवत मिलते साथ कोई आराम नहीं मिल रहा है, उनकी इज़्ज़त नहीं बढ़ रही है। उनको क्या हो रहा है, उनको तकलीफ़ें आ रही। जो जितनी इज़्ज़त थी वो भी क्या हो गई, वो भी पूरी ख़त्म हो गई। बाहर जो थे उनको मुश्किलात आ ही रही थी, बाहर से तो जो मुश्किलात है ही है और घर में भी मतलब अगर एक बाप के दिल से पूछेंगे तो अगर उसकी 2 बेटियाँ तलाक होके घर पे आ गई तो कितना ये लगा रहेगा। तो इनको बाहर से भी उनको मुश्किलात आ रही है, घर में भी उनको परेशानियाँ आ रही है, तो ये सारी परेशानियाँ नबी वसल्लम को आती जा रही हैं। तो यहाँ से भी हमको क्या सबक मिल रहा है कि जब हम दीन के काम पे निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको सारी आसानी मिल जाएँगी। हमको क्या होगा, तकलीफ़ें आएँगी ही आएँगी। सबसे पहले हमारे घर वाले ही हमको ये करेंगे, फिर बाहर वाले भी हमको करेंगे, मना करेंगे, घर वाले भी मना करेंगे और कोई एकदम एकदम आसान रास्ता नहीं रहेगा। ये कैसा रास्ता है, दीन का रास्ता तकलीफ़ों भरा ही रहने वाला है। तो हमको भी क्या याद रखना है कि अगर जब हम पढ़ते हैं सीरत, तो हम देखते हैं कि नबी वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें आई, कितनी उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, उन्होंने पत्थर खाए, उनको उनके खून निकला, ये सारी तकलीफ़ें, बाहर की तकलीफ़ें तो तकलीफ़ें सही है और दिल से भी जो उनको तकलीफ़ें आ रही है, जैसे कि एक दोनों बेटियों का क्या हो रहा है, तलाकशुदा हो जाना और भी उनको कितनी और आगे भी हम देखेंगे कि उनको और कितनी ऐसी तकलीफ़ें आई, तो जितनी उन्होंने नबी वसल्लम ने तकलीफ़ें उठाई, तो उसके सामने जो हमको तकलीफ़ आ रही है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इस ये समझ के हमको क्या करना है, हमको भी दीन के जो रास्ते में हम निकलते हैं, तो उसपे हमको क्या करना है, हमको कायम रहना है। हमको क्या करना है, हमको साबित कदम रहना है। हम अल्लाह से यही दुआ करना कि अल्लाह जब हम तेरे रास्ते पे निकले हैं, तो हमको कैसे रख, हमको साबित कदम रख कर के। फिर ये अबू लहब की जो बीवी जो थी, वो भी है ना नबी वसल्लम को सताने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ती थी। वो क्या किया करती थी, काँटे भरी झाड़ियाँ है ना नबी वसल्लम के रास्ते में बिछा देती थी और उनको भी है ना बहुत गलत-गलत बातें, गाली-गलौच से बातें ये सब किया करती थी। तो इसलिए जब हमने लास्ट बार ही पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तब्बत यदा जो सूरा है अबू लहब का नाम लेके उसमें ये की है। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में दुश्मनों का जो इस्लाम के दुश्मन है, उनका कभी नाम नहीं लेते, लेकिन सिर्फ़ अबू लहब जो है उसका नाम लिया गया है। उसके लिए क्या कहा गया है कि अबू लहब के हाथ टूट जाए और उसकी जो बीवी है वो क्या होगी, ईंधन उठाए रहेंगी। तो जब ये आयत नाज़िल हुई, तो उसकी बीवी को जब पता चला ना तो वो इतना गुस्सा हुई, इतना गुस्सा हुई और उसने क्या करी, अपने हाथ में पत्थर लेकर आई कि वो क्या करे, नबी वसल्लम को जहाँ पर भी देखे तो वो पत्थरों से उनको मारे करके। और है ना नबी वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है ना खाने काबा के पास ही बैठे हुए थे और ये आई है और इसने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किए, उसकी आँखों से नबी वसल्लम को ये कर दिए, दिखाई दे नहीं दे रहे हैं, तो उसने क्या देखी, सिर्फ़ हज़रत अबू बकर बैठे हैं, जबकि साथ में उनके नबी वसल्लम बाजू में बैठे हुए हैं, लेकिन वो उम्मे जमील को दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने हज़रत अबू बकर को देखी और जाके उसने हज़रत अबू बकर को है ना बहुत बातें करी। उसने बोली कि तुम्हारे दोस्त को बोल देना अगर मेरे सामने दिख गया तो मैं उसको ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, पत्थरों से मारूँगी और बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें करके वो वहाँ से चले गई। और हज़रत अबू बकर देख के सोच रहे कि क्या हुआ इसको, नबी वसल्लम बाजू में ही बैठे हैं लेकिन ये क्या बोलती जा रही है। फिर जब वो चली गई तो उन्होंने नबी वसल्लम को बोले कि आप तो मेरे बाजू में बैठे हैं और वो आपके बारे में ऐसा सब बोल के गई। तो नबी वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किए, उसकी नज़र में मुझको है ना ये कर दिए कि मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ करके। फिर
اور नबी वसल्लम को अबू जहल और फिर जो नबी वसल्लम के जो आसपास जो पड़ोसी थे वो भी क्या किया करते थे, नबी वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया करते थे। वो बकरे के जो अंदर की अतरियां हैं वो सब उनके घर में डाल देते थे, और कभी कभी नबी वसल्लम सिजदे में तो उनके ऊपर डाल देते थे। और ये सब उनके खाने में, जो कभी खाना पका हुआ है तो उनके खाने में आके कुछ गंदगी डाल देंगे, इस तरह से नबी वसल्लम को बहुत सताया करते थे। और ये सारी चीजें नबी वसल्लम चुपचाप बर्दाश्त किया करते थे, और खाली क्या बोलेंगे कि ए बनी अब्दुल मनाफ, ये पड़ोसियों के साथ कैसा तुम लोग सलूक करते हो करके करके ऐसे बस इतनी बात बोलते थे। एक बार क्या हुआ, नबी वसल्लम खाने का बाग में नमाज अदा कर रहे थे, और अबू जहल जो था वो अपने है ना दोस्तों के साथ वहां पे बैठा हुआ था। और दोस्तों के साथ बैठ के अब इन लोग बातें करते करते बोलता है अबू जहल कि कौन है जो क्या करेगा, ऊंट की जो वजड़ी है, ऊंट के जो उसका ये है वजड़ी, और उसके जो पेट का सामान है वो लाके नबी सल्लम के ऊपर डालेगा करके। तो ऐसी बातें करे। अब इनके देखो साथी लोग कैसे है कि उन लोग भी कोई मना नहीं कर रहे कि नहीं देखो बेचारा नमाज पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हारे इस पे भी नहीं आ रहे, तो तुम क्यों उनको सताना चाहते हो। उनके साथी भी क्या कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। तो उसमें से जो एक था उकबा बिन अबी मुआत, वो उठ गया और उसने बोला मैं जाके करूंगा। अब देखो ऊंट की बजड़ी मतलब लेकर आना मतलब क्या होता है, वो बहुत हैवी चीज होती है, वो कोई लाइट चीज नहीं होती है। हम लोग बकरी की जो वजड़ी और वो सब रहते हैं वही कितनी वजन होती है, तो ऊंट की तो हम लोग सोच सकते हैं वो कितनी वजन होगी। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, अपनी ताकत बता रहा है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं जाके ला सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ करके उसने क्या किया, और उसने गया और जाके लेकर आया। और जब नबी वसल्लम सिजदे में थे तो उसने क्या किया, लाके उनकी पीठ के ऊपर डाल दिया। और अब नबी सल्लम ने क्या कि जब तक वो उसकी पीठ के ऊपर था तो नबी सल्लम उतनी देर तक सजदे में ही थे और वो हटे ही नहीं। और इन लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीज देख के हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और फिर है ना इतने में उनकी बेटी जो थी बीबी फातिमा, वो वहां पर आ गए। तो जल्दी से वो बीबी फातिमा आए और उन्होंने क्या किए, जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हटाए। तो हटाने के बाद नबी सल्लम ने अपना सर ऊपर किए और उन्होंने 3 बार बोले कि ए अल्लाह इन काफिरों को क्या कर दो, बर्बाद कर दो। तो जब उन लोगों ने सुने कि नबी वसल्लम ने ऐसी बात बोले कि ए अल्लाह इन काफिरों को बर्बाद कर दो, तो उन लोग को सब और गुस्सा आ गया और उन लोग डर भी गए, क्योंकि उन लोग क्या बात समझते थे, मानते थे कि खाने काबा में अल्लाह हर एक दुआ को सुनता है। और यहाँ पे इन लोग की गलती भी थी ना, इन लोग ने सताए भी थे, तो इसलिए फिर इन लोग सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। और एक दूसरी जगह से रिवायत आती है कि नबी सल्लम ने क्या किए थे, सबका नाम लेके बोले थे कि ए अल्लाह अबू जहल, उतबा बिन राबी, शैबा बिन राबी, अल वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ, उकबा बिन अबी मुएत और उमरा बिन अल वलीद, ये सातों के नाम लेके बोले थे कि इन सबको बर्बाद कर दो करके। फिर और एक था कुरैश जिसका नाम था उमैया बिन खलफ। वो हमेशा नबी वसल्लम को जब भी देखता था तो लान तान करता था नबी वसल्लम को और बहुतान करता था उनके ऊपर। तो उसके लिए ही कुरान में आयत निकली है वैलुल कुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा, के जो ऐसे लान तान करता है और गीबत करता है और बुरी बातें करते हैं, उस पे वैल है करके, उस पे बुराई है करके, ये आयत अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके लिए ही नाजिल की है। फिर इसी तरह से इन लोग क्या कर रहे थे, नबी सल्लम को बहुत सता रहे थे, और प्लस जितने भी नए मुसलमान हुए हैं उन लोग को भी बहुत सताया जा रहा था। अब मुसलमान लोग क्या कर रहे थे, एक दारे अरकम करके जगह थी, वहां पे मिलते थे और वहां पे चुपके चुपके से थोड़ी जो कुरान की आयतें आ रही है, दीन आ रहा है, ये सब है ना इन लोग सीखते थे। तो ये है ना, ये जो अरकम का जो घर था, दारे अरकम, दार मतलब अरबिक में होता है घर। तो ये दारे अरकम मीन्स क्या था, अरकम जो एक साहबा जो थे, अल अरकम बिन अबुल अरकम अल मखजूमी, उनके घर में मिला करते थे। छोटा सा जो घर था, थोड़ा दूर था, पहाड़ों के इस पे था, तो वहां पे से इसलिए मिला करते थे ताकि कुरैश लोग को पता नहीं चले कि यहाँ पे इन लोग मिलते हैं, और छुपके छुपके वहां पे मिलके वहां पे उन लोग तब दीन और ये सब कुरान की आयतें ये सब है ना इन लोग सीखा करते थे। अब क्या हुआ, अब अल्लाह सुब्हान तआला ने है ना सूरह जुमर की आयत नाजिल कर दी। अब सूरह जुमर की आयत में अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं
کہ وہ لوگ جو اچھائی کر رہے ہیں دنیا میں ان لوگوں کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بغیر حساب کا اجر ہے کر کے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے۔ مطلب جب اللہ کی زمین بڑی ہے اور تم کو ہے نا یہاں پہ دین یہ کرنے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑ رہا ہے، تو تم لوگ کیا کر لو؟ ہجرت کر لو۔ تو یہاں پہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو 5ویں سال میں کیا ہو گیا کہ اب حالت جب بہت زیادہ خراب ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ایبیسینیا کر کے جو ایک جگہ ہے، اب انگلش میں اس کو ایتھوپیا بولتے ہیں، وہاں کا راجا جس کا نام کیا تھا؟ اسامہ تھا۔ اسامہ وہاں کا راجا ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ کرسچن تھا، لیکن وہ کیسا تھا؟ عادل بادشاہ تھا۔ وہ ہے نا عدل کرنے والا بادشاہ تھا، کرسچن تھا اور لیکن بہت عادل بادشاہ تھا، بہت نیک بادشاہ تھا۔ تو تم لوگ کیا کرو؟ تم لوگ کی جس کی استطاعت ہے وہ کیا کرو؟ وہ وہاں پہ چلے جاؤ، ایبیسینیا چلے جاؤ، اور پھر وہاں پہ جا کے تم لوگ آرام سے اپنا نماز پڑھ سکو گے، اپنا دین پہ چل سکو گے کر کے تم لوگ کیا کرو؟ وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیے، تو رجب کے مہینے میں 12 آدمی اور 4 عورتیں ابیسینیا کے لیے نکل گئے۔ اس میں سے عثمان بن عفان تھے، اور ان کی بیوی رقیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ ان لوگ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ پہلے لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد میں یہ پہلے لوگ ہیں جس نے اللہ کے لیے ہجرت کیے ہیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ان لوگ کے بارے میں، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیے ہیں۔ تو اب ان لوگ کیا کرے؟ ان لوگ اتنے لوگ جو 12 لوگ اور 4 عورتیں ہجرت کر کے وہاں پہ چلے گئے، ابیسینیا میں چلے گئے۔ اب جب ان لوگ جا کے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ اسی سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا خانے کعبہ کے پاس تھے، اور وہاں پہ ہے نا بہت سارے قریش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سب بڑے بڑے لیڈرز اور کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ اب جب یہ لوگ قریش لوگ تھے، اب ان لوگ قریش لوگ کا کیا معمول تھا کہ ان لوگ ہے نا کبھی بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو تاکہ ان لوگ سنیں نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں تک آئے نہیں، سنیں گے تو پھر ان لوگ کو ماننا پڑے گا نا، تب ان لوگ کو کچھ سمجھ میں آئیں گی، ان لوگ کے دل پہ اثر ہوئے گا۔ تو ان لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ زور زور سے آوازیں کیا کرتے تھے، تاکہ ان لوگ کی جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ ان کے کانوں میں نہیں آئے کر کے۔ تو اس پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگ قرآن کو نہیں سنتے تھے اور آوازیں کرتے تھے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ ان لوگ غالب آ جائے، مطلب کیا ہو جائے؟ ان لوگ کی بات ہی رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں رہے کر کے ان لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن کو سننے نہیں دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کے وقت آوازیں کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ آیت ہے۔ تو لیکن یہ جب ان لوگ سن رہے تھے تو یہ بات سن کے ان لوگ تھوڑا یہ ہوئے، اور سن کے پھر ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے تو ان لوگ اتنے یہ ہو گئے، ان لوگ سننے لگے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں تو ان لوگ سنتے رہ گئے، اور سنتے سنتے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے جہاں پہ کیا تھی؟ سجدہ کی آیت تھی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو کر کے۔ تو ان لوگ سارے کے لال سارے لوگ جب ان لوگوں نے سجدہ کی آیت سنے تو سارے کے لوگ کیا کرنے لگے؟ سب کے سب بگڑ اپنے اس میں اپنے ہوش میں بگڑ رہے، سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب ان لوگ جب سجدے میں سے اٹھے تب ان لوگ کو سمجھ میں آیا کہ ان لوگ سے کیا ہو گئی ہے؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ان لوگ نے سب لوگ نے کیا کر رہے؟ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ لیکن پھر ان لوگ کیا کرنے لگے؟ اٹھنے کے بعد بہانے بنانے لگے کہ نہیں نہیں، اس میں تو ہمارے دیوی کے بارے میں تھا تو ہم لوگ نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرے بلکہ ہمارے جو یہ ہے آبا اور اجداد ہے ان کے لیے سجدہ کرے کر کے۔ تو یہاں پہ ان لوگ اس طرح سے باتیں بنانے لگے۔ اب یہاں پہ میں اور ایک بات بولنے چاہوں گی کہ دیکھو اس قرآن کی آیت میں کیا آتا ہے کہ ان لوگ کیا نہیں کرتے تھے؟ ان لوگ قرآن نہیں سنتے تھے، اور قرآن کے وقت کیا کیا کرتے تھے؟ آوازیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ قریش کا معمول تھا کہ ان لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں نہیں آئے تو اس وجہ سے ان لوگ آوازیں کیا کرتے۔
मैं 1 मिनट ज़रा ये लेती हूँ, अज़ान हो रही है, फिर शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब यहाँ पे हम लोग ये आयत पढ़ रहे कि कुरैश लोग क्या करते थे, इन लोग कुरान को नहीं सुनते थे और आवाज़ें करते थे ताकि इन लोग में क्या है, कुरान की आवाज़ें इनके कानों में नहीं जाए। करके इन लोग आवाज़ें करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला और कि कुरान में आयत आती है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो क्या करो, खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये जो बात है इसका है ना हमको बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। देखो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि काफ़िरों की आदत थी, काफ़िरों की आदत थी कि हम लोग जब कुरान की तिलावत होती थी तो उन लोग क्या किया करते थे, आवाज़ें किया करते थे। तो ये आज हमको भी हमारे घरों में ज़रा इस बात का ज़रा बहुत ख़्याल रखना चाहिए। कि जब भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम क्या करते, कोई कर रहा है कुरान की तिलावत और हम लोग वहाँ पे बैठ के अगर हम लोग 2 जाने, 3 जाने तो हम लोग हमारी बातें करते बैठे रहते। तो ये सब से हमको भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। और ख़ास करके जब रमज़ान का महीना आता है और तराबे होती है मस्जिदों में और क्या होता है बच्चे हैं ना बाहर खेलते रहते। तो अब वहाँ पे कुरान की तिलावतें हो रही है और बाहर क्या हो रहा है बच्चे खेल रहे। तो इस बात पे भी ज़रा हमको गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए कि जब है ना जब कम से कम जब तराबे का वक़्त हो उस वक़्त हमको क्या करना चाहिए हमारे छोटे जो बच्चे हैं उनको मना करना चाहिए कि तराबे हो रही है वहाँ पर तो उस वक़्त तुम लोग क्या नहीं करोगे, वहाँ पर नहीं खेलोगे, वहाँ पर आवाज़ नहीं करोगे। जहाँ पे तराबे हो रही है, जहाँ पर भी कुरान की तिलावतें हो रही है और तुम लोग की आवाज़ आ रही है कानों में, तो तुमको क्या करना है, उसका एहतराम करना है और वहाँ पे तुमको आवाज़ नहीं करना है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम ये इस चीज़ का भी ज़रा ख़्याल रखेंगे और इस पर भी हम अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे तो दूसरी जगह का पता नहीं लेकिन अक्सर हम लोग बॉम्बे में देखते हैं कि एक जगह पर कुरान की तिलावतें हो रही है, तराबे की आवाज़ लाउड स्पीकर रहता है तो आती रहती है और बाजू में बच्चे खेल रहे हैं और उन लोग की भी आवाज़ें आती रहती। तो ये जो हम लोग ये गलतियाँ करते आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हमको ये भी गलतियाँ कम हमारी सुधारने की कोशिश करना चाहिए। प्लस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि रात-रात भर बच्चे क्या होता है रमज़ान है तो हम लोग रात-रात भर जागेंगे किस लिए जागेंगे? खेलने के लिए जागेंगे। तो ये भी हमको हमारे बच्चों को सिखाना है कि रमज़ान की रातें खेलने के लिए नहीं है, रमज़ान की रातें किसके लिए है? इबादत करने के लिए है। तो यहाँ पे भी हमको हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि रात अगर आ रही है रमज़ान की, तो या तो तुम एटलीस्ट क्या करो, या तो तुम घर में बैठो, कुरान पढ़ो, इबादत करो और अगर वो नहीं कर रहे हो, तो तुम चुपचाप सो जाओ। लेकिन तुम बाहर जाओ, खेलो, ये सब कामें नहीं करो और कुछ ये नया चीज़ मत शुरू करो।
और जो अगर हम लोग मुस्लिम्स एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम रहते हैं तो क्या होता है, वो उन लोग को है ना बहुत ये लगता है, उन लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अगर रात-रात को तुम जागोगे, आवाज़ें करोगे, तो हमको तो सहरी में उठना है, हम लोग उठ रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, ये हमारा मामूल है। लेकिन उन लोग का तो ये मामूल नहीं है ना, तो इस बात से उन लोग को भी बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर उन लोग को क्या आती है, उन लोग के दिल में भी बुराई आती है कि देखो इन लोग का कैसा ये है, इन लोग का कैसा मज़हब है, वो क्या कर रहा है, लोगों को उन लोग की वजह से हमारी नींदें खराब होती है। और यही हम लोग इस तरह का, जब बड़ी रातें भी आती है, शाबान की रातें भी आती है, तब भी यही होता है कि रात भर क्या करते हैं, बच्चे लोग, लड़के लोग पूरा बाहर भटकते हैं, बाइकों में भटकते हैं, पूरी आवाज़ें करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो मुसलमानों का है ना नाम बहुत खराब होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, उन लोग के लिए तो कोई बड़ा ये नहीं है, उन लोग को तो सोने का टाइम है। तो उन लोग के नींद में हम लोग क्या करते, खलल करते। तो ये भी हमारे बच्चों को है ना, ये सब भी चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमारे बच्चों को रोकना बहुत ज़रूरी है कि रात होती है, अगर कोई भी रात है जहाँ पे इबादत करना है, तो इबादत करो, और अगर तुमको इबादत नहीं करना है तो घर में बैठ के सो जाओ। सिर्फ ज़बरदस्ती बाहर जाओ, खेलो, आवाज़ें करो, ये सब मत करो करके। तो इस तरह से जब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मक्का के लोग थे, ये इन लोग क्या हो कुरैश लोग क्या करे, सिजदे में गिर गए। तो अब ये सिजदे में तो गिर गए, लेकिन फिर इन लोग ने तो बता दिए कि नहीं नहीं, हम तो अल्लाह के लिए सिजदा नहीं किए थे, हमारे जो आबा और अजदाद थे उन लोग के लिए हम लोग ने सिजदा किए थे, उस क्योंकि उसमें एक आयत उन लोग के बारे में भी है, तो हम लोग ने उनके लिए सिजदा किए थे करके। लेकिन ये बात जब एबिसीनिया में पहुंची तो क्या बन के पहुंची कि ये जो है कुरैश लोग सारे के सारे लोग ईमान ला लिए और उन लोग सिजदा में गिर गए करके, ऐसी बात पहुंची। क्योंकि अब ये कुरैश लोग को पता था ना कि एबिसीनिया में मुसलमान पहुंच गए, तो इन लोग ने ऐसी बात वहां पे पहुंचाई कि क्या हो गया है, कुरैश अभी है ना अच्छे हो गए हैं, ईमान ला लिए है। तो ये जो मुसलमान लोग वहां पर गए थे, तो उन लोग के कानों में क्या बात आई कि अभी मक्का अच्छा हो गया है और वहां पे सब लोग ईमान ला लिए हैं, तो ये जितने लोग गए थे इन लोग वापस पलट के वापिस आ गए। तो यहाँ पे भी हमको और एक बात समझ में आती है कि जो बात हमारे कानों में आती है उसको है ना आँख बंद करके नहीं ये करना चाहिए। आज हमको कानों में देखो मीडिया जो बोलती जाती है, हम लोग क्या करते हैं, कान में आँख बंद करके उसको सब सच्ची समझते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा है ना, हमको ज़रा दिमाग यूज़ करना चाहिए, और जो भी हम मीडिया में देखते हैं, जो भी न्यूज़ में देखते हैं, ज़रूरी नहीं है सच है। आज तो अल्लाह हिफ़ाज़त करे हम मुसलमानों की। हम लोग को है ना कुरान की आयतों के बारे में हम लोग ये करते, ये करते, जिदाल करते कि ये आयत ऐसा क्यों, वो आयत कभी ये कैसी, इसके हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेकिन जो न्यूज़ में बोलते हैं वो सारी चीज़ हम क्या समझते हैं, पत्थर की लकीर है, सब एकदम परफेक्ट पूरा सच हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको हमारा ईमान सही करना चाहिए, और हमको ये सब समझना चाहिए कि जो न्यूज़ आता है वो ज़रूरी नहीं सच ही है। और न्यूज़ में उन लोग कितना तोड़-मरोड़ के और कितना क्या बोलते हैं, वो उन लोग को ही पता है। तो ये भी चीज़ हमको हमारी आँख और दिमाग खोल के हमको जो भी बताया जाता है, वो भले वो व्हाट्सएप में हो, भले वो न्यूज़ में हो, जो भी बताया जाता है, तो हमको हमारी समझ से भी काम लेना चाहिए। सिर्फ़ आँख बंद करके उन लोग जो बोलते हैं और उसको नहीं ये करना चाहिए। प्लस और एक-एक बात भी ये मैं बोलना चाहूँगी कि व्हाट्सएप में क्या होता है, कुछ भी जो हमको मैसेज आता है, वो हम लोग बिगर उसकी तहकीक किए क्या किया करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर दिया करते हैं। तो मतलब मुसलमानों पे कहीं ज़ुल्म हो रहा है, तो ऐसी आती है मैसेज कि यहाँ पे देखो ऐसा हम मुसलमानों पे ज़ुल्म हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और हम क्या करते हैं उसको, देखो, देखो मुसलमानों के साथ कितना ज़ुल्म हो रहा है करके हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते। तो यहाँ पे भी जब तक हम उसको तहकीक नहीं करें, हम उसको हरगिज़ भी फॉरवर्ड नहीं करें। फिर बाद में हमको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है, ऐसे मैसेजेज़ आए, जिसके बाद में उन लोग बताते कि नहीं, नहीं, ये तो कोई पुरानी तस्वीर थी, ये तो कौन-सी बहुत पुरानी बात थी जिसको इसको वापस रिपीट करके बोला गया। तो ये सब चीज़ों में भी हमको बहुत परहेज़ करना चाहिए। जो भी न्यूज़ ऐसी हो कि जिससे क्या हो, मुसलमानों में या किसी भी और कौम में क्या हो, डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, झगड़े का अंदेशा हो, तो ये चीज़ तो भेजने से बहुत-बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। और ये जो व्हाट्सएप पे हम लोग भेजते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये हमको है ना एक सैटिस्फैक्शन मिल जाता है
کہ چلو ہم نے تو ہمارا فرض ادا کر دیا. ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ ہم نے تو ہمارا فرض ادا کر دیے. دیکھو ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں کوئی بھوکے ہیں ان لوگ کو کھانا کھلاؤ، یہ سب کر کے ایسے میسج آتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی فارورڈ کر دیتے اور ہم لوگ کو دل میں کیا سوچ لیتے ہیں؟ ہم نے ہمارا فرض ادا کر دیا. تو یہ بھی ہے نا ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہم لوگ رہتے. یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں رہتے. تم 100 میسجز فارورڈ کر دو، جب تک کہ تم پرسنلی اس کو اگر ہیلپ نہیں کرو گے تو وہ کوئی ہیلپ اس کی کچھ معنی ہی نہیں ہوتی. 100 میسجز پھریں گے لیکن ایک بھوکے بچے کو کھانا نہیں ملے گا جب تک کہ کوئی ڈونیٹ نہیں کرے گا، جب تک کہ کوئی جا کے اس کو پیسے نہیں دے گا. ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں؟ صرف میسج فارورڈ کر دیتے، وہ میسج اور فارورڈ ہوتا رہتا ہے. کوئی اس میں سے 100 میں سے کوئی شاید ایک رہے گا جو ڈونیٹ کرتا ہوگا، لیکن ہم ہمارے دل میں مطمئن ہو جاتے کہ ہم نے ہمارا فرض ادا کر دیا. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط ہے. ہم کو صرف میسج کر ہم لوگ فارورڈ کر دیتے، ہمارا فرض ہم لوگ ادا نہیں کر دیتے. ہم کو خود جانا ہے، خود دیکھنا ہے، جتنا مطلب دور دور تو نہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ریچ میں ہے، جہاں ہم لوگ مدد جس کی کر سکتے ہیں وہ ہم کو پرسنلی کرنا ہے. یہ جو دین جو پھیلا تھا، جو صحابہ لوگ نے دین پھیلائے تھے، ان لوگ نے کسی اور سے بول کے ایسا بول کے نہیں کروائے تھے. ان لوگ خود پرسنلی جاتے تھے، پرسنلی اپنا کام کرتے تھے، دین کے لیے پرسنلی جد و جہد کرتے تھے، خود اپنا خون اور پسینہ بہاتے تھے، تبھی یہ دین پھیلا ہے. تو اگر ہم لوگ آج سوچیں گے کہ ہم صرف میسیجز فارورڈ کر لیں گے اور دین پھیل جائے گا دنیا میں، تو یہ نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم ہمارے اخلاق صحیح نہیں کریں گے اور ہم ہمارے دعوت کے کام نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے تب تک یہ نہیں پھیلنے والا. اور ہم کو اگر ایگزامپل ہی دیکھنا ہے تو آج ہم لوگ سکھ کمیونٹی کی ایگزامپل دیکھ سکتے کہ آج سے جب اندرا گاندھی ان لوگ نے اسیسینیٹ کیے تھے تو ان لوگ کا حال کتنا خراب تھا، ان لوگ کو کتنا یہ ٹارچر کیا جاتا تھا، ان لوگوں کو کتنا ستایا جاتا تھا. لیکن ان لوگ کی محنت سے آج ان لوگ نے کیا کیا ہے؟ اپنا نام کمایا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کھانا کھلانے کا یہ سب کام ان لوگ کرتے ہیں. ان لوگ کے یہ ہوتے ہیں، ان لوگ کی جو جگہ پہ کھانا کھلانا، اور ان لوگ کا یہ بھی رہتا ہے کہ ان لوگ وہاں پہ جا کے کیا کرتے؟ والنٹری یہ کرتے، مدد کرتے لوگوں کی. تو یہ سب آج ان لوگ نے صرف 40 سال کی عمر، اس میں ان لوگ نے 30-40 سال کے ٹائم میں ان لوگ نے کیا کیا؟ آج اپنا اتنا نام کمائے. تو ان لوگ نے کوئی میسیجز اور سب کر کے نہیں کرے، ان لوگ نے خود اپنا کام کر کے کرے. تو یہاں سے ہم کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کو بھی یہ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سب کرنے کے لیے خود سے کرنا پڑے گا. پھر اب یہ جب واپس سے ابیسینیا کے لوگ واپس سے آ گئے تو کیا ہو گیا؟ اب مسلمانوں پہ واپس سے ظلم دیکھے کہ ان لوگ یہاں پہ تو آنے کے بعد مکے میں تو حال ویسے ہی ہے، اور پلس اب کیا ہو گئے؟ قریش لوگ جو گئے تھے ان لوگ پہ بھی ظلم کرنے لگے، اور جتنے تھے اور ان لوگ پہ بھی ظلم کرنے لگے. تو اب کیا ہوا؟ اب ان لوگ نے سوچے کہ اب واپس سے ہم کیا کریں گے؟ ابیسینیا میں کیا کر دیں گے؟ ہجرت کر دیں گے. لیکن اب قریش لوگ کیا ہو گئے تھے؟ چوکنا ہو گئے تھے، کیونکہ ان لوگ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ پہلے جا چکے ہیں. تو اب ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگ پہ برابر نظر رکھ رہے تھے. تو ابھی واپس سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں تھا جب پہلی بار جو ہجرت کر لیے. لیکن پھر بھی اب اس وقت ابھی کتنے لوگ؟ 83 لوگ آدمی لوگ، اور 17 یا 18، کہیں پر آتا ہے 17 اور کہیں پر آتا ہے 18. تو 18 عورتیں جو تھی ان لوگ نے ہجرت کی. اور اسی میں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو ہجرت کرنے والے، دوسری ہجرت میں وہ بھی تھے کر کے. تو یہ اتنے لوگ کیا کرے؟ پورے کے پورے لوگ ابیسینیا میں ہجرت کر لیے. اب جب قریش لوگ کو پتا چلا یہ بات تو ان لوگ بہت بہت زیادہ غصہ ہو گئے کہ کیسے ہمارے سے بچ کے ان لوگ نکل گئے اور ان لوگ ابیسینیا چلے گئے کر کے. تو قریش لوگ میں سے جو کچھ بڑے لوگ سردار تھے وہ ابیسینیا کے جو راجا تھا اسما اس کو جانتے تھے. تو ان لوگ نے کیا کیے؟ قریش لوگ نے ملے اور اس میں سے جو دو بڑے سردار تھے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی رابی، ان کو ہے نا بھیجے، ابیسینیا بھیجے، وہ راجا کے پاس بھیجے. راجا کے پاس اچھے تحفے وحفے، بڑے اچھے اچھے تحفے ہے نا راجا کی خدمت میں بھیجے. تو یہ دونوں جو گئے، یہ جو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن رابی تھے، یہ ان لوگ کیسے تھے؟ ان لوگ پولیٹیکل لوگ تھے. ان لوگوں کو پولیٹیکلی بات کرنا، کیسے بات کرنا، کیا کرنا، یہ سب چیز میں بہت ماہر تھے. تو یہ لوگ وہاں پہ گئے اور راجا کے پاس گئے اور راجا کو جا کے کیا کیے؟ تحفے وحفے دیے. تحفے وحفے دینے کے بعد پھر ان لوگ سے بات کیے
ये बताए कि देखो हमारे है ना, हमारे इधर से है ना कुछ लोग है ना आपके इधर आ गए हैं, और ये लोग है ना, इन लोग ने क्या किए, हमारे दिन को छोड़ दिए हैं, और इन लोग है ना आपके दिन में भी नहीं आए। ये राजा क्रिश्चियन था, तो उनको बोले कि आपके दिन में भी नहीं आए, हमारे दिन को छोड़ दिए हैं लेकिन आपके दिन में भी नहीं आए। इन लोग ने ना एक अपना नया दिन बना लिए है, और इन लोग आके आपके इधर रह गए हैं करके इन लोग ने बोले। और हम लोग को है ना उनके खुद रिश्तेदार लोग ने भेजे है कि जाओ जाके हमारे रिश्तेदारों को वापस लेकर आओ, ताकि उन लोग जब वापस आ जाएंगे तो इन लोग को क्या करेंगे, इन लोग वापस से हम लोग को हमारे दिन पे लेकर आ जाएंगे करके करके हमारे लिए उन लोग ने भेजे है करके। तो राजा ने इनकी बात सुना और बोला, मैं क्या करूँगा, मैं उन लोग की भी बात सुनूँगा। अब ये कैसा, अब आदिल बादशाह था, तो ये सिर्फ़ एक लोग की बात सुन के नहीं आ गया उन लोग की बातों में। इसने क्या किया, इसने बोला अच्छा तुम्हारी जो बात है वो मैं सुन लिया, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछूँगा कि क्या बात है। तो उन लोगों को बुला के भेजा कि जो आए हैं, मक्का से जो लोग आए हैं उनको मेरे सामने पेश करो। तो उन लोग जाके जो मक्का के लोग थे उनको लेकर आए। अब उसमें जो मुसलमान थे उसमें है ना जाफिर बिन अबी तालिब। जाफर बिन अबी तालिब कौन है? अबी तालिब के बेटे हैं, और ये है ना हज़रत अली जो है रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके क्या है? उनके भाई है। तो ये भी साथ में हिजरत किए थे। तो इन लोग को राजा की दरबार में बुलाया गया। तो राजा की दरबार में बुलाया गया तो राजा ने पूछा कि बताओ क्या बात है तुम्हारी? क्या बात है कि तुम लोग क्यों मक्का छोड़ के यहाँ पर आए? तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि देखो राजा, हम लोग है ना जाहिल थे। हम लोग है ना बुत परस्ती किया करते थे, पत्थरों की इबादत किया करते थे, मुर्दार खाया करते थे, और हम लोग है ना गाली-गलौच किया करते थे, और हमारे जो रिश्तेदार हैं उन लोग से हम लोग झगड़ा किया करते थे। पड़ोसियों का हम लोग हक नहीं देते थे, उन लोग के साथ भी झगड़ा करते थे, और हम में से जो भी ताकतवर था वो क्या करता था, कमज़ोरों पे हुकूमत किया करता था, उसको खा जाया करता था। हम लोग इस तरह से थे। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए, हम में एक रसूल को भेज दिए। और हम लोग जानते हैं कि जिस पे जो कुरान नाज़िल हुआ, जो हमारे रसूल है, वो हमेशा सच्चे थे, भरोसे के लायक थे, बहुत अच्छे इंसान थे। फिर उन्होंने क्या किए, हमको अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, और फिर उन तो हम लोग ने क्या किए, हमारा जो ये था मज़हब, जो हमारे आबा और अजदाद का मज़हब था, वो हमने छोड़ दिए, और हमने क्या किया, उनकी दावत को कबूल कर लिया। और वो हमको क्या हुक्म देते थे, हमको है ना सच बोलने का हुक्म देते थे, भरोसा करने का हुक्म देते थे, भरोसा निभाने का, वादा निभाने का हुक्म देते थे, और जो हमारे रिश्तेदार हो उनके साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देते थे, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहने का हुक्म देते थे, और खून खराबा मत करो ये भी हुक्म देते थे। फिर वो हमको क्या बोलते थे कि बुरी बातें मत करो, बुरी ज़बान मत बोलो, और है ना किसी भी यतीम का माल है ना मत खाया करो, बिगर उसके इसके नाहक तरीके से यतीम का माल मत खाओ, और कोई भी पाक दामन औरत जो है उसके ऊपर गलत इल्जाम मत लगाओ। तो ये, और हम उन्होंने हमको और भी क्या हुक्म दिए कि हमको सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक नहीं करना है, ये भी उन्होंने हमको हुक्म दिए। और उन्होंने हमको नमाज़ अदा करने का, और है ना खैरात अदा करने का, और रोज़े रखने का हुक्म दिए। तो हम ये सारी चीज़ें मानने लगे, और हमने उन पे भरोसा किए, और जब हमने उन पे ईमान लाए और हम ये सारी चीज़ जब हम करने लगे, तो ये जो कुरैश लोग हैं उनको क्या लगा, ये क्या हम लोग है ना गलत कर रहे हैं, और इन लोगों ने क्या किए, हमारे को बहुत सताने लगे, और हम लोग के साथ बहुत गलत सलूक करने लगे, हम लोग को बहुत सताने लगे, ताकि हम क्या करें, हम पलट के वापिस से इनके दीन में आ जाए। इनके दीन में जैसे गलत काम हो रहा है ये सब चीज़ वापिस हम लोग करने लगे, हम वापिस से हमारा दीन बदल जाए, और हम वापिस से दीन में आ जाए करके इन लोग ने हमको बहुत सताए। हम लोग को बहुत टॉर्चर करे, तो इसके बाद हमने क्या करे, जब उन लोग के टॉर्चर हद से बढ़ गया, और हम लोग क्या करे, हम लोग भाग के यहाँ पे आ गए, तो आपके इसमें आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप क्या है, बहुत अच्छे और आदिल बादशाह है, और हमारे साथ कोई गलत नहीं करेंगे करके, इसलिए हम आपके पास आ गए। तो जब ये राजा ने सुना ये बात,
तो उसने बोला कि अच्छी बात है, तुम लोग यहीं पे रहो। मतलब उसमें को समझ में आ गया क्या ये जो बोल रहे हैं लोग सब सही बोल रहे हैं, अच्छी बात है, तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग वापस मत जाओ, तुम लोग जाओ जाके यहीं पे रहो करके इसने ऐसा बोल के भेज दिया। अब भी ये जो थे इन लोग जो दोनों आए थे, ये लोग ऐसे ही वापस पलट के नहीं आए। इन लोग ने फिर राजा के वापिस से बात करी कि देखो, देखो, ये जो लोग हैं अब तक ये जा जितनी भी बात हो रही थी वो क्या हो रही थी? कुफ़्र के खिलाफ हो रही थी। तो अब इन लोग ने क्या किया राजा को वापिस से भड़काए कि देखो, ये जो मुसलमान लोग हैं ना, वो ईसा अलैहि सलाम के बारे में भी कुछ बोलते हैं, कुछ गलत-गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो ऐसी बात बोलते हैं कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, ऐसी सब बातें बोलते हैं करके। तो फिर से राजा ने वापिस से उनको वापिस से बुला के भेजे। तो फिर से जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने बताए कि हमारे नबी सल्लम जो बताते हैं ईसा अलैहि सलाम के बारे में, तो वैसे ही उन्होंने सूरह मरियम की कुछ आयतें जो कुरान की थी, वो पढ़ के सुनाए और उन्होंने बताया कि हमारे नबी सल्लम क्या बोल रहे हैं कि ईसा अलैहि सलाम कौन है? ईसा अलैहि सलाम वो है जो क्या है अल्लाह के बंदे हैं और उसकी रूह जो उन्होंने क्या की थी अ, मरियम अलैहिस्सलाम के इसमें फूँकी थी करके उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम को हम ऐसा जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के एक मैसेंजर है, नबी है करके और उनकी रूह जो थी वो बीबी मरियम के इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फूँकी थी करके इस तरह से हम लोग जानते। तो जब राजा ने ये सारी बातें सुने और सूरह मरियम सुने, तो राजा ने बोले कि हमारा भी यही यकीन है, हमारा भी यही ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम भी यही समझते हैं करके। और फिर उन्होंने क्या बोले, जो कुरैश के जो लोग आए थे उनको बोले कि तुम लोग है ना, तुम्हारा जो भी तुम तोहफ़े-वोफ़े लाए थे, वो सब तुम लेके वापिस चले जाओ और मैं ये जो मुसलमान हैं, ये लोगों को तुम्हारे हवाले हरगिज़ भी नहीं करूँगा और अगर के तुम मुझे पहाड़ के बराबर भी सोना दोगे ना, तभी भी हरगिज़ भी मैं तुमको वापिस नहीं करूँगा। तुम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग यहाँ से मक्का जा सकते हैं और जो मुसलमान लोग हैं, वो आराम से मेरे राज में रह सकते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, उनके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो उसपे क्या लगेगा, तावान लगेगा, उसपे मैं पनिश करूँगा उसको। तो इस तरह से ये राजा ने क्या किया, मुसलमानों को अच्छे से रखा और बोला कि तुम लोग अच्छे से रहो और कुरैश लोग को वापस भेज दिया। तो कुरैश लोग को यहाँ पे भी बहुत गुस्सा आया कि अब इन लोग देख रहे हैं कि मुसलमान पहले तो मक्के में ही थे, अब क्या हो रही है ये बात मक्के से बाहर जा रही है और जो पहले हमारे दोस्त थे जो राजा लोग वो अब क्या हो रहे हैं वो ऐसे-ऐसे मुसलमानों की तरफ पलट रहे हैं। तो इन लोग क्या करने लगे अब है ना नबी सल्लम को और मुसलमान जो उनके पास जो उन लोग के हाथ में रह गए थे, जो उनके पास रह गए थे, उन लोग को बहुत ज़्यादा सताने लगे। तो फिर अब है ना इन लोग क्या करने लगे नबी सल्लम के साथ भी बहुत ये करने लगे और मुसलमानों को भी जो जितने वहां पे रह गए थे वहां पे भी सताने लगे। अब क्या हो गया, अब इसी तरह एक बार नबी सल्लम खाने काबा के पास थे तो वहां पे है ना अ, अबू जहल ने आके ना नबी सल्लम को सताया था इसी तरह से और है ना क्या हुआ था उसने ना बोलते कि पत्थर फेंक के मारा था और वो जाके नबी सल्लम को लग गया था और नबी सल्लम को है ना ये नहीं करने दे रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था और यहाँ ये सारी बातें हैं ना, जो एक है ना हज़रत हमज़ा की है ना एक खादिम थी, उसको सारी चीज़ें ना ये सब पता थी, ये सारी बातें पता थी। और हज़रत हमज़ा जो थे ना उस वक़्त कहाँ पे गए थे, शिकार करने के लिए गए थे। अब हज़रत हमज़ा जो है, वो भी क्या लगते हैं हमारे नबी सल्लम के चाचा लगते हैं। और है ना ये है ना अब तक के ये ईमान नहीं लाए थे। ये छठा साल चल रहा है और इन्होंने भी है ना अब तक के ईमान नहीं लाए थे। और लेकिन है ना अ, अभी इन्होंने जब वापस आए वापस घर पे आए तो इसने क्या किए इनकी जो जो ये थी गुलाम जो थी इनकी जो लौंडी थी तो वो बातें कर रही थी काम करते करते बातें कर रही थी कि आज तो है ना अबू जहल ने हद कर दी। आज तो अबू जहल ने हद कर दी, अगर कोई मेरे भतीजे जैसा ऐसा किया रहता तो मैं तो उसको छोड़ती नहीं, ये नहीं करती, ऐसी सब बातें कर रही थी। तो हजरत हमजा ने सुन लिए कि ये क्या बात कर रही है, तो वो पूछ रहे कि क्या हुआ, क्या हुई बात बता। तो उसने बताई कि आज तो अबू जहल ने बहुत हद कर दी, तुम्हारे भतीजे के साथ ऐसा किया, वैसा किया, इसने ऐसा मारा, इसने ऐसा सताया, तो ये सुन ली।
اب یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ جو تھے ان کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ ابھی کس کی بات ہو رہی تھی، ان کے بھتیجے کی بات ہو رہی تھی نا، ایک خون کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، اور ان لوگ کا قبیلہ کیسا تھا کہ ان لوگ رشتوں کو بہت یہ دیتے تھے۔ تو یہ سن کے نا حضرت حمزہ کو ہے نا بہت غصہ آ گیا اور بہت جلال آ گیا، اور یہ نا اٹھ کے ہے نا ان کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھا وہ لے کے ہے نا خانے کعبہ کے پاس گئے، اور خانے کعبہ کے پاس ہے نا ابو جہل ہے نا وہاں پہ بیٹھا کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہے نا ابو جہل کیا کیا کرتا تھا، وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتا تھا خانے کعبہ کے پاس ہے نا، وہاں کے لوگ ان لوگ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، پلاننگ سب کیا کرتے تھے، تو ابو جہل ہے نا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت حمزہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، انہوں نے گئے اور ہے نا انہوں نے کیا کیے، ابو جہل کے سر پہ اپنی ہے نا تیر سے دے مارے، اور ابو جہل گر گیا، اور انہوں نے زور سے چلا کے بولے کہ تم نے میرے بھتیجے کو ستایا، تم لوگ میرے بھتیجے کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا بول رہا ہے اللہ ایک ہے، اس لیے اب ہے نا میں بھی میرے بھتیجے پہ ایمان نہیں، جو بول رہا ہے میرا دین، اب کون سا جو میرے بھتیجے کا جو دین ہے نا وہ میرا بھی دین ہے، اب تم لوگ کیا کرتے میرے ساتھ کر کے بتاؤ کر کے، میں بھی ابھی کیا کر رہا ہوں، میں بھی ہے نا میرے بھتیجے کے اوپر ایمان لایا کر کے بول دیا۔ اب یہ بات دیکھے نا ابو جہل وہ جو تھے نا انہوں نے کیا کرے بات کو اگر اور بڑھانا کر لیے نہیں کر کے، اب سارے لوگ گھیر لیے، ان کے دوست لوگ سب گھیر لیے، اب ان لوگ بعد میں واپس سے لڑائی کر سکتے تھے تو، لیکن انہوں نے کیا کیے دیکھے کہ حضرت حمزہ بہت غصے میں ہے، تو بات کو اور زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے کر کے انہوں نے بول دیے کہ نہیں نہیں چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو مارا تھا تو اس نے بھی مجھے مارا، یہ حساب برابر ہو گیا۔ اور یہاں پہ اب یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے طیش میں آ کر ایمان لا لیے اور کیا کرے کلمہ پڑھ لیے اور اسلام لا لیے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ اب کیا ہو گئے، ان کے ساتھ کون آ گئے، ان کے چاچا آ گئے، بھلے انہوں نے جوش میں ایمان لائے تھے لیکن پھر کیا ہو گیا، انہوں نے سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، انہوں نے ایمان لے کر آ گئے۔ تو اس سے کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور قریش کو ہے نا یہ سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا، کیونکہ حضرت حمزہ جو تھے نا وہ بہت بہادر تھے، اور ان سے ہے نا بہت سارے لوگ ڈرتے تھے۔ اب تک کے جو بھی اسلام میں آئے تھے وہ لوگ کیسے تھے، وہ یا تو مطلب مڈل ایسٹ لوگ تھے، یا تو تاجر لوگ تھے، یا تو زیادہ تر غلام لوگ تھے۔ اب یہاں پہ جو حضرت حمزہ ہے وہ کیا ہے، قریش کے ایک بڑے سردار ہے، اور بہت ہی نیڈر ایک دم بہادر۔ اب ایک ایسا انسان کیا ہو گیا جو ایک دم بہادر ہے، ایک دم نیڈر ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو یہ قریش لوگ کے لیے یہ بہت بڑا دھکا تھا، اور یہ مسلمان لوگ جو تھے ان لوگ کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان پہ آ گئے۔ تو الحمدللہ آج کا ہم لوگ یہیں تک کے رکھیں گے، اگر کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے